Hello students, I am Nidhi and I am back with a new lesson. In today's video, I am gonna teach you how to use auxiliary verb might. See students, might is a modal verb which is most commonly used to express possibility. Less possibility, always remember, we use might to show less possibility in any situation. English speakers can also use might to make suggestions or requests, although this is less common in American English. So without wasting our so much time, let's discuss how might is used. The very first use says of might to make polite request. Remember one thing, we always use may, but sometimes you can use might also to make polite request. Might I ask you a question? That means you are making a polite request to someone that you want to ask a question from him or her. Might we just interrupt for a moment? क्या हम थोड़ी देर के लिए आपको इसमें इंटरप्ट कर सकते हैं? दैट मीन्स आपको रोक सकते हैं, थोड़ा इंटरप्ट कर सकते हैं. तो यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट टू समवन, यू कैन यूज माइट. Our second use says when we are not sure about some things, when we want to show less possibilities or small possibilities or a bleak chance of something happening. Remember, it's less possibilities, we use might. My first example shows I might see you tomorrow. That means chances are very low. You are not very sure that you will see or not. It might rain today. It might not rain today. See, remember one thing, may and might are often interchangeable. I mean, you can say it also, it may not rain today. But if you are very less sure about things, we use only might. So it might not rain today. It might be very expensive. अब इसको मैं अगर हिंदी में बोलना चाहूँ ना तो शायद ही, ये शायद जो है ना ऐसा हो कि भाई शायद ऐसा हो, तो वो सारी बातें जब ऐसा हो, शायद ऐसा हो, मुझे हिंदी में यही वाली बातों को जब मैं ट्रांसलेट करती हूँ तो मैं माइट का यूज़ करती हूँ. और माइट अपने अंदर इन दोनों हिंदी के वर्ड्स को समा लेता है, शायद को भी और ऐसा हो को भी. इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, शायद ऐसा हो कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो. सनी माइट कॉल मी, शायद ऐसा हो कि सनी मुझे कॉल करे. मे और माइट की जब हम बात करते हैं, इट ऑलवेज शोज लेस पॉसिबिलिटी देन मे. मतलब अगर हम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझाया था, व्हेन वी आर 50% श्योर ऑफ पॉसिबिलिटी वी यूज मे, एंड व्हेन वी आर only 30% श्योर अबाउट द पॉसिबिलिटीज, that means the chances are very low and you are not very sure about the things, so you can use might. It may rain or it might rain. He may come or he might come. Both are correct, but it depends only on your situation. How you use might when you talk about past possibilities, the ideas of past possibilities. For example, if we want to say about the past possibilities से आप मतलब क्या समझ रहे हो कि भाई वो पास्ट में हुआ है और पास्ट की पॉसिबिलिटी को ही शो कर रहा है. तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है इट्स 10 o'clock, दे माइट हैव रीच्ड नाउ. लेकिन इनका क्या सीधा सा मतलब निकलता है? पहले तो मैंने ये बोल दिया that it's 10 o'clock, they might have reached now. Perhaps they have reached, that means शायद वो पहुँचे होंगे, शायद ऐसा हुआ हो. आपको हिंदी में क्या समझना है?
कि might have plus past participles whenever you want to put in your sentence, तो हमेशा जो है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी हिंदी, जब भी हम इन चीज़ों को बनाना चाहते हैं तो हमारी हिंदी ये निकलनी चाहिए, शायद ऐसा हुआ हो। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है शोज पास्ट पॉसिबिलिटी, बट फॉर द पास्ट it is better to use might have plus past participles. They might have arrived hours ago. Perhaps they arrived hours ago. मतलब शायद ऐसा हुआ हो कि वो काफ़ी घंटों पहले पहुंच गए हों। My third example shows he might not have taken the food. मतलब शायद ऐसा हुआ हो कि उसने खाना नहीं खाया हो। तो शायद आपको भी ये स्ट्रक्चर समझ आ गया हो, आई होप। मतलब ही माइट नॉट हैव टेकन द फूड, शायद ऐसा नहीं हुआ हो कि उसने खाना खाया हो। जब भी आपको ये सेंस निकालनी होती है कि शायद ऐसा हुआ हो, इट माइट हैव रेन्ड, शायद यहाँ बारिश हुई हो, तो आपको वो शायद और यहाँ हुई हो, हुआ हो, ऐसा हो, कुछ जब कुछ भी एक आइडिया प्रेजेंट करना होता है विद पास्ट पॉसिबिलिटीज़, तो हमारा स्ट्रक्चर हमेशा रहता है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में आपको जो अपने सेंटेंस में आपको एनलार्जमेंट देनी होती है वो। नाउ माय थर्ड यूज सेज एंड द लास्ट यूज सेज माइट हैव टू। माइट हैव टू का सिंपल मीनिंग निकलता है बेटा, शायद ना पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, शायद मुझे जाना पड़े, शायद मुझे ये काम करना पड़े, ना पड़े। जो भी काम होगा वो वर्ब होगी, वो ना में तो ऑटोमेटिकली आप हिंदी को जानते हैं कि हिंदी में अपने आप वो वर्ब जो है वो जुड़ जाती है। देन द स्ट्रक्चर फॉलोज सच एज सब्जेक्ट माइट हैव टू plus verb की first form. Always remember student, whenever you put to in a sentence, it always follow verb first form. to आपने जब भी लगाया उसके तुरंत बाद आपको verb की first form लगानी होती है। I might have to go, शायद ऐसा हो मुझे जाना पड़े। I might have to give 100 rupees to the police, शायद ऐसा हो कि मुझे 100 रुपीज़ देने पड़े। यू माइट हैव टू क्वारल, शायद तुम्हें झगड़ा करना पड़े। आई माइट हैव टू लीव द जॉब, शायद मुझे जॉब खोनी पड़े, छोड़नी पड़े। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। मे एंड माइट आर वेरी सिमिलर एंड कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज बी यूज्ड एज अल्टरनेटिवली। मतलब इनको एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। माइट इज़ कंसिडर्ड अनप्रैक्टिकल while may is considered as sweet and practical to make polite requests. This brings me to the end of the lesson. I hope you find this lesson very useful. Learn the use of might. I'm sure your doubts are clear. I'll be back very soon with another lesson. Till then, take care of yourself and bye.